Hello everyone, welcome back. So here in this video, we are going to start a new chapter, Force and Newton's Laws of Motion. Now in the last video, I give you a brief sketch of what we are going to see or what we are going to study in this chapter. Okay, so today our topic is Introduction to Force. And today we are going to see force, its unit, everything, and at last effects of forces, and at last I am going to tell you one more thing about types of forces. Yes, I told in the previous video that it will take two separate videos to complete, but here I am going to discuss two kinds of forces so that you get a brief idea of about that. Okay, let us start. Now first you need to know about definition of force. So what actually is force? Let us know about that. Force, it is a physical factor. It is a physical factor which which changes or tries to change tries to change state of the body. Okay, so it is a physical factor which changes or tries to change state of a body, the state of a body. Okay, सो फोर्स एक्चुअली फिजिकल फैक्टर है जो कि किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है. ईदर इट विल चेंज कंप्लीटली or it can change or it cannot change as well. Now this might confuse you, so I want to give you a simple example. Suppose there is a box of 10 kg kept uh, in front of you. Now if you want to displace that box that is at rest, if you want to produce motion in that, you need to apply force. Now tell me, if your weight is around 5 kg, let us suppose 5 kg is your weight. Now when you are pushing that box, you are not able to apply force, greater force. तो जब हम लोग ज्यादा उस पर फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या होगा? वो बॉडी वहीं पर रुक जाएगा, वो तो घूमेगा नहीं ना. तो यहाँ पे क्या हुआ? वो चेंज नहीं हुआ. लेकिन फोर्स ने क्या किया? उसको चेंज करने का ट्राई किया, उसको कोशिश की कि वो बॉक्स थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए, पर वो बॉक्स डिस्प्लेस हुआ नहीं. ठीक है, तो एक फिजिकल फैक्टर है जो कि किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. ठीक है, बस वो ट्राई कर सकता है कि बॉडी का स्टेट थोड़ा सा चेंज हो जाए, पर वो डिपेंड करता है कि हम कितना फोर्स लगाते हैं कि बॉडी का स्टेट चेंज होता है या नहीं होता है. सेम स्टैंड विथ अ मूविंग कार. एक बहुत ही तेज चलती आती हुई गाड़ी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? ज्यादा फोर्स अप्लाई करके. अगर कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो गाड़ी को हम नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज दैट कार ऑलरेडी हैज अ ग्रेटर फोर्स. ओके, greater energy. So for avoiding its speed, we need to apply greater force. So we are trying to change the state of that car. So here are some of the example which I gave you. Okay, or you can also say in simple term, it is a push, a push or a pull. छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है, a push or a pull. Now this you can add in your answers, but it will be better to write this because now you have reached class 9, so you should know this about what actually force is. Okay, now next is, it is a physical quantity. It's a physical quantity. So as I told you in the last chapter that any physical quantity you should learn first its definition, then its unit, then after its dimension, and then after to know whether it's a scalar quantity or it's a vector quantity. Right, let us start. Now its unit, it's SI unit.
its SI unit is Newton, capital N. its SI unit is Newton. न्यूटन जो है इसका SI यूनिट है, ओके. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज इट्स CGS unit. CGS unit is dyne. D-Y-N-E, dyne. Okay, its CGS unit is dyne. Okay, and as I told you, two things. One thing is already completed. Now for that we need to just know one thing more, that it is a vector quantity. A vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, इसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है. मैंने बताया था पिछले वीडियो में, स्केलर वेक्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे बताया था कि फोर्स इज a vector quantity which has direction as well as magnitude. So जब भी आपने कभी-कभी देखा होगा -10F, -5F, so that minus sign indicate the direction, negative direction, or you can say the negative force. Okay, तो इसका डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट होता है डायमेंशन. पर डायमेंशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? एज आई टोल्ड यू दैट डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. विदाउट फॉर्मूला यू कांट कैलकुलेट द डायमेंशन. ओके, ओके. So now just know one more thing about force, and that is where should I write? Okay, I'm writing here. If you want to note it down, you can note it down. Now, see here. It is also defined as, it is also defined as product of mass and acceleration. Okay, mathematically I hope you have noted down. F is equal to mass into acceleration. अब यहां से हम लोग थोड़ा सा डायमेंशन इसका कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो इसका हम लोग थोड़ा सा डायमेंशन निकालना देख लेते हैं कि इसका डायमेंशन क्या है. तो फोर्स का डायमेंशन है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल. हमें पता है कि हम लोग डायमेंशन में तीन चीज को देखते हैं, मास, लेंथ और टाइम. ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग देखते हैं. चलो, तो m जो होगा मास में, तो m हो गया. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. अब इसको कैसे करेंगे? ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी. अब m ये हो गया. अच्छा, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट s बाई टी. तो s के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? s के लिए l लगाते हैं और ये हो जाता है t. तो ये ऊपर आता है तो क्या बन जाता है? lt का पावर -1, मतलब l का पावर 1, t का पावर -1. अब यहाँ पर है m और ये देखो v है और यहाँ पे u है. उसको कैसे लिख सकते हैं? lt का पावर -1 माइनस lt का पावर -1 डिवाइडेड बाई t. ठीक है. अब ये क्या होगा? ये ऊपर आ जाएगा. अभी देखो ये हो जाएगा, ये वेट दैट इज अ मिस्टेक हियर. दैट एक्सेलरेशन, लेट्स डू वन थिंग. इस फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है सेकंड लॉ से. देन वी विल सी द डेरिवेशन, बिकॉज एंड डोंट राइट दिस आल्सो बिकॉज जनरली ये जो हमारा फॉर्मूला आया m into a, ये ऑलरेडी न्यूटन सेकंड लॉ में है. बस इतना हमें जान लेना चाहिए कि इसका SI यूनिट जो होगा ये हमें पहले जान लेना है, बिकॉज ये कभी कभी हो सकता है कि पूछ लिया जाए. बट m into a का अगर हमारे पास डेरिवेशन अवेलेबल है सेकंड लॉ में, तो उसका जरूरत नहीं है अभी उसको पढ़ने का या फिर डायमेंशन निकालने का, बिकॉज उस टाइम हम लोग निकाल लेंगे अच्छे से. ठीक है. सो SI यूनिट याद रखना, इसका क्या हुआ? न्यूटन. और CGS यूनिट इसका याद रखना है, वो हो गया हमारे पास डाइन. बस इतना ही चीज याद रखना है, इसके अलावा फोर्स में और कुछ नहीं.
ओके। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय एरो लगा करके। ओके, नाउ द नेक्स्ट। अब देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट एक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या इफेक्ट्स, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। फोर्स एक्चुअली कर क्या 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 कर सकता है, ये भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग बहुत चीज खुद से ऐड कर सकते हैं, बहुत चीज, ठीक है। पर हमें मेजर क्या चीज देखने को मिलता है, वी आर गोइंग टू सी दैट। फर्स्ट, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन के स्टेट को ये चेंज कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेशनरी बॉक्स है, तो स्टेशनरी बॉक्स का मोशन अभी तो मोशन में है नहीं, वो रेस्ट पे है। तो इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल के लिख दो रेस्ट, ठीक है। तो जब भी कोई रेस्ट पे चीज हो तो उसको मोशन में ला सकता है, कोई चीज मोशन में हो तो उसको रेस्ट पे ला सकता है। ओके, कैसे? तो एक बहुत तेज चल रहा हुआ चीज को, उसको हम लोग रोक भी सकते हैं। तो व्हाट कैन चेंज? इट कैन चेंज द motion of an object. It can change the rest condition of an object. When we push a stationary box, or we just run when we are sleeping, we are at rest. Just when we wake up, we are in motion. So same thing happen. So force can change the state of a motion and rest. And the force produced when you are sleeping is your alarm. You know very well. Okay. So it can change the state of motion or rest. Next, it can change the direction, you can change the direction of an object, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिकेटर्स व्हाट दे डू, द लीनियर बॉल, एक सीधे आती हुई गेंद को वो कहीं पर भी घुमा के मार देते हैं, बिकॉज बाय द यूज ऑफ देयर रिस्ट, बाय द यूज ऑफ देयर पावर, तो कहीं पर भी बॉल को मार देते हैं। व्हाट दे डू, दे अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल एंड दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, बिकॉज बॉल सीधी आ रही होती है, ठीक है, और उस बॉल को वो लोग मार देते हैं। तो मार देने से क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ? डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, या फिर वो स्टेट चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है फोर्स? इट कैन चेंज, it can change the shape and size of an object, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है? ये किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है? और इसमें बहुत सारी चीज खुद से ऐड कर सकते हैं। पर एक और चीज हो सकता है कि, हाँ इतना ही काफी है हमारे लिए जानना, बस 3 पॉइंट्स, that is enough for us. Okay, if anything else is your NCERT, then read it, because this topic is very easy. Now I am going to tell you about 2 kinds of forces which you would have studied in your previous classes. Okay, so let us start that also. Now see here, this is force. Force is broadly divided into 2 categories. First is contact force. Second is non-contact force.
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स इट arises due to it arises when bodies are in contact with each other। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे तब वो ये वाला फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे, फ्रिक्शन इज व्हाट, इट्स एन ऑपोजिट फोर्स, इट्स एन ऑपोजिंग फोर्स। हु अप्लाइज दैट, सरफेस अप्लाइज इट। सो व्हेनेवर वी आर वॉकिंग, friction is applied on our legs, but we are able to overcome friction by applying more force than the force of friction। कहने का मतलब जब हम लोग चल रहे होते हैं तो हमारे पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है, बट हम लोग उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं बाय अप्लाइंग मोर फोर्स देन फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो एक्चुअली फ्रिक्शन इज एन ऑपोजिंग फोर्स, और ये कब लगता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो जब तक ये दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आते हैं तब तक फ्रिक्शन नहीं लगता है। कांटेक्ट में आने से ही, सरफेस के कांटेक्ट में हम लोग आते हैं तभी फ्रिक्शन लगता है। सो फ्रिक्शन इज व्हाट, इट्स अ कांटेक्ट फोर्स। सो फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल होगा कांटेक्ट फोर्स का। मस्कुलर फोर्स, सो व्हेनेवर वी लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट, सो देयर इज अ लिंक बिटवीन our hand and our hand and the box। Okay, now the non-contact force, it arises when two bodies are not in contact। जब दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होते हैं और जो फोर्स लगता है उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, इसको एक और फोर्स बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, मतलब एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, कुछ दूरी पर लग रहा हुआ एक्शन यानी कि फोर्स, उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल, बहुत ही फेमस फोर्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, मैग्नेटिक फोर्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इस समझ में आया कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो जब भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटी कौन लगाता है, धरती, ओके। सो व्हाट, अर्थ लगाता है। अर्थ अपने ओर सारे जो बॉडीज है उनको अपनी ओर खींचता है, और जिस फोर्स से खींचता है उसको कहते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हालांकि दोनों को अभी हम लोग सेम मानेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या, बुक और किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो क्या वो सरफेस और बुक और जिसको ड्रॉप कर रहे हैं क्या वो कांटेक्ट में होते हैं, नहीं होते हैं, बिकॉज वो डिस्टेंस पे होते हैं कुछ। और मैग्नेटिक फोर्स, हमने देखा होगा मैग्नेट को कि मैग्नेट को अगर किसी दूरी पे रखते हैं और जब एक और मैग्नेट ऑपोजिट, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो अगर साउथ पोल ईस्ट टुवर्ड्स है तो इधर अगर हम लोग नॉर्थ पोल ले आके लगा देते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। सो ये कुछ डिस्टेंस पे ही आकर भी ये भी अट्रैक्ट हो सकता है, तो इसीलिए ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी दो चार्जेस के बीच में लग रहा हुआ फोर्स, ठीक है। अब चार्जेस के बीच में भी फोर्स लगता है। अब कोई चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू और यहाँ पे कोई चार्ज है, सपोज यहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे कोई चार्ज माइनस क्यू है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है ये होता है प्लस क्यू, ये हुआ माइनस क्यू। तो प्लस क्यू वाला माइनस क्यू को खींच लेगा तो क्या हुआ, ये कुछ दूर से फोर्स लगा है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस
कुछ डिस्टेंस पे है, और जो इन दोनों के बीच का रिलेशन देता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको कूलॉम ने अच्छे से डिफाइन किया था। अभी आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, ठीक है, पर एक और ब्रॉड कैटेगरी है फोर्सेस के जो पढ़ लेना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। पढ़ लेते हैं वो भी, जो कि शायद नहीं सुना हो आप लोगों ने बट जरूरी है, एंड दैट इज, आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, वेट। So it is, first is real forces and second is pseudo forces. Okay, so real forces and pseudo forces. What are real forces? The force the fundamental forces of nature, the fundamental forces of nature. Okay, example, gravitational force, gravitational force, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर में भी दो फोर्स, कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। ओके, स्यूडो फोर्स में कौन सा फोर्स आएगा, द फॉल्स फोर्स, द फॉल्स फोर्सेस, झूठा फोर्स, कौन कौन सा, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ये हमने बताया था। I told you in the motion chapter about centripetal and centrifugal force, centripetal and centrifugal. So these are two kinds of forces, centripetal and centrifugal forces. So these are what, pseudo forces. ये फोर्स झूठे होते हैं, ये हम लोग बस बताने के लिए लगाते हैं कि हाँ एक फोर्स लग रहा होगा। We assume that whenever a body moves in a circle, must a force will be acting on that body, and that body and that force will be centripetal fluid. We assume that, we don't know whether this force is present or it governed our nature or not. Okay, so this is about pseudo and real forces. In the next video we are going to see, broadly going to see the real forces, because and something new I am going to teach you there. Okay, there will be real forces we are going to see, and mainly there are gravitational, electrostatic and nuclear. These all three kinds of forces we are going to see in the next video. Okay, thanks for watching this video and keep supporting. Okay, till then we are coming in the next video on real forces. Okay, till then, goodbye.